थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट होता है ना, बस क्वांटम मैकेनिक्स इज माय फेवरेट। आई डोंट नो व्हाट इज दैट। Got sir. Okay. Okay, so there are two conditions. The one is, suppose if you want to know, for example, this is the hydrogen nucleus, and there is one electron here. So video got stuck. Sir, video was paused. Okay, there was some network issue. Actually, the speed was very less. I hope I am audible now. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So what I was telling you is this situation where you have this hydrogen atom. There is only one proton, one electron. Now this is the simplest thing for you people, and this is the most complex thing for Schrodinger equation. So if you solve this Schrodinger equation for this electron, the state of this electron, now the wave function associated with this electron is given by psi. And then we define this as minus h cross square upon 2m, del by del x square, del 2 by del x square, and plus v, this term as h and psi, then it comes out to be E psi. Now here, if you solve this equation, you get this E as the energy of this orbit. Okay? This is a constant value. Sir, again pause.
Okay, thanks for reminding that the internet is not working. Okay, so let me present once again. Window. Like this. So what I was telling you that there are two situations. One is the static. Static means this electron is revolving in first orbit. So that is stationary situation. So the what is the energy of this electron? That is the question. And the answer is solve this equation. You get whatever the value of E. That is the energy of the electron in that state. In that state. Okay. The situation 2 is, let me just erase this one. So that is the situation. And situation 2 is electron is already in one energy level. It goes to another energy level by absorbing some energy. And then when it comes down, it will give out the energy. Okay. Now in such cases, now this is what it is called as energy. This is energy and this is matter. Okay. So this is called as energy matter interaction. So in such cases where there is an energy and matter interaction, we always use the equation as H psi equal to IH cross del psi by del, which is the time dependent equation. Okay? Are you getting this point? Whenever there is a change in energy change हो रही है, state of the electron is changing. Okay? So in that case, we have to use the time dependent equation. For ground state of hydrogen atom, ground state means it doesn't have anything to do with the time. Okay? I hope you are listening to me. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो जो सिचुएशन आपको ग्राउंड स्टेट वाली है तो वो उसमें तो टाइम का कोई संबंध ही नहीं है. So the electron is going to stay there forever. So in that case, what we write is the Schrodinger's time independent equation. But whenever we say that, for example, the absorption of energy, emission of energy, fluorescence, luminescence, all these phenomena, wherever there is a jumping of electron from higher orbit to the lower orbit, in that case, what we talk about is the time dependent equation. This one, IH cross del psi by del. In that case, we use the energy as operator because we are operating this energy. We are just giving this energy or we are taking this energy from the electron. Okay? No, sir. Any other doubt? Yes, sir. I have not understood what's going on. Okay, and don't worry. If you don't understand, it's quite okay. Nobody understands quantum mechanics in first instance. When I took almost 3 I'm years sorry, to sir. understand all these things. No, it's okay. It's okay. You don't need to say sorry. Even there is a very famous saying by Richard Feynman. Probably you have heard this name, Richard Feynman. So he says, safely I can say, I don't know in quantum mechanics because nobody knows. So quantum mechanics is like that. Okay. So there are certain rules and it is something like कौन से है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाली बुक किसकी H.C. Verma. यस एच.सी. वर्मा की बुक में भी लिखा है और फाइनमन की बुक में भी लिखा है सिमिलर सिचुएशन कि if you are trying to understand physics or laws of physics, specifically I will say laws of quantum mechanics. So it is something like you are watching a game and you don't know the rules of the game. कल या परसों में कोई एक गेम देख रहा था
सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक टेबल्स होते हैं, ठीक, तो उसके रूल मुझे समझ में नहीं आ रहे, दैट इज समथिंग लाइक द नेचर्स रूल, ठीक है। तो सिचुएशन वही है, जैसे आप चेस है, चेस आप में से कितने लोगों को चेस समझ में नहीं आता है, कोई ऐसा? यस, नाउ सपोज यू आर वाचिंग द चेस, ओके, गुड गुड गुड, बहुत सारे। तो इनको अगर हमने ये कहा कि आप चेस देखो, सिर्फ हम आपको रूल्स बताएंगे नहीं, और आपको रूल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कार्ड्स में फॉर एग्जांपल रमी पता ही नहीं है कैसे खेलते हैं, और सिर्फ आपको एक प्लेयर के साइड में बिठा दिया, अब आप उसको उसके रूल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज लाइक दैट, you cannot ask the question to atom or the electron, what is your state, you tell me. Electron is not going to tell you. You will have to do some experiments, then you get something. Even you don't see the atom, you don't see the electron, so there is no question of seeing. So it is something like कि हाँ ठीक है, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं बारिश हुई होगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप? इनडायरेक्ट इन्फरेंस जिसे बोलते हैं, कोई भागते आ रहा है या कुछ 4 8 10 लोग भागते हुए आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो गया है, ऐसे तो भागेंगे नहीं, कहीं बैल आया होगा, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ होगा, ब्लास्ट हुआ होगा। तो इनडायरेक्ट इन्फरेंस जो हम निकालते हैं, इसी टाइप से हमें वो एटम को स्टडी करना पड़ता है, वी कांट सी एनीथिंग। तो इस टाइप से आप वो स्टडी करते हैं। अब स्टेशनरी स्टेट जो होते हैं, स्टेशनरी स्टेट का मतलब हो गया कि एटम ग्राउंड स्टेट में है, तो टाइम के हिसाब से वो चेंज होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा, उस पर डिपेंड है। नहीं, जैसे है वैसे रहेगा, उसकी एनर्जी लेवल वही रहेगी, उसका वेव फंक्शन भी वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उस केस में आप श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन यूज करेंगे वो फाइंड आउट करने के लिए। जबकि अगर आपने किसी गैस को, सपोज आपने एक बल्ब लगा दिया सादा वाला ट्यूबलाइट, ठीक है, तो ट्यूबलाइट में आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दिया और इस टाइप से कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ ट्यूबलाइट, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, और ये हाई वोल्टेज यहाँ पे हमने दे दिया। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स में flow from this side to this side or this side to this side, depending upon the potential. So it may go like this or like this. So if you see the stream of electrons from one side to the other, then this is a case where the position of the electron is changing. So this is a time dependent phenomenon. और अगर आपने ये इन दोनों को AC सिग्नल दे दी, और AC इज नाउ टाइम डिपेंडेंट, तो कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, सो इट विल मूव एंड विद टाइम इट विल चेंज। तो ये कैसे चेंज हो रहा है, इसका क्या इंटरेक्शन? या फिर कोई एक एटम है जिसमें हायर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है एंड देन इट जम्प्स टू लोअर ऑर्बिट एंड यू गेट सम फोटॉन, जस्ट लाइक व्हाट यू आर स्टडीड इन LBP-BP। ये क्या है? हाँ, ये पहला मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको पता ही है। याद है कुछ? फिजिक्स में था लास्ट टाइम। लाइमन, बाल्मर, पाश्चेन, ब्रैकेट, टीपन, तो अलग अलग आपको ये सीरीज मिल रही है। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बोथ पोजीशन एज वेल एज दी एनर्जी, बोथ आर चेंजिंग। सो ये जो चेंज हो रहा है, एनर्जी में चेंज हो रहा है और पोजीशन मतलब वेव फंक्शन में चेंज हो रहा है, दैट इज स्टडीड बाय दिस इक्वेशन H psi इक्वल टू IH क्रॉस del psi। तो उस केस में आपको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है सर? यस सर। सर हाँ हाँ बोलो।
सर हमने वो इक्वेशन सॉल्व भी कर ली, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया है? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता हमें, हमें इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन मिलता है, एंड देन वी कैन प्लॉट दिस वेव फंक्शन अबाउट से एक्स वाई जेड एक्सिस, और मोर पॉपुलरली इट इज आर थीटा फाई। ठीक है, तो आर थीटा फाई मतलब, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन यू द आर थीटा फाई कंसेप्ट। ओके, जैसे एक्स वाई जेड, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली स्पेस वही है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। So suppose this is x y z, and then we define some stick here। एक स्टिक हमने डिफाइन कर, जिसका लेंथ है r, and this r is given by say square root of x square plus y square plus z square। ठीक है, जैसे हम एक्स वाई प्लेन में r और थीटा डिफाइन करते थे इस टाइप से, दिस इज x, दिस इज y, एंड देन r was defined as square root of x square plus y square, result। ठीक है, theta was defined as the angle with respect to x। Similarly here also we define theta as the angle between r and x, and there is another angle which is defined with z, which is phi। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अभी ये कैमरे की तरफ देखो, मतलब जो मैं दिखा रहा हूँ। नाउ सपोज दिस इज आर, ये पेन जो है वो आर है, और इसको मैंने 180 डिग्री में रोटेट कर दिया। ठीक है, पहले ऐसा था, अब इसको 180 डिग्री में रोटेट कर दिया। नाउ इन दिस केस फ्रॉम से दिस वर्टिकल टू द 180, ओके, या इस केस में अगर मैं यहाँ से अगर इसको पकड़ता हूँ तो उसको 360 में ऐसे मैंने रोटेट कर दिया, तो कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर तैयार होगी? ये मैंने थीटा जो है ये ऐसे 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 रोटेट कर दिया। व्हाट इज दिस फिगर? ये हो गया सर्कल, बराबर है, सर्कल हो गया। टेट्रागोनल। यस सर। ये जो स्टिक है ना हमारी आर लेंथ की, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है? ये इस तरफ है। अब अगर आप क्लासरूम में होते तो देन इट वाज वेरी इजी टू एक्सप्लेन। यहाँ पे ये जो है ये दिस इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, दिस वन जेड इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, उसके अबाउट ऐसे मैंने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कल, एंड थीटा इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 360, okay, और 2 पाई। ठीक है, इतना समझ में आया? ये यहाँ पे भी हम यही करते थे, सेम। तो थीटा वाज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, और एक उसका जो एरिया रहेगा, ये जो एरिया कवर कर रहा है ये वेक्टर आर वेक्टर सपोज, तो ये हो गया आपका सर्कल, दिस इज सर्कल। इट इज सिमिलर टू द 2 डायमेंशन। नाउ इन 3 डायमेंशन व्हाट यू डू, यू टेक दिस एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलावा इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मोबाइल है सपोज, ठीक है, नाउ मोबाइल इज सर्कुलर। सर्कुलर मेरे पास कुछ नहीं है अभी, इसको मैं अगर रोटेट करता हूं सिर्फ 180 डिग्री। रिमेंबर दिस इज सर्कुलर एंड आई एम रोटेटिंग इट इन 180 डिग्री। सो व्हिच 3 डायमेंशनल फिगर आई एम गेटिंग? Sphere. Yes, very correct. Hemisphere. Sphere, not hemisphere, because we are rotating the complete circle. अगर हम सेमी सर्कल कन्वर्ट करते, सॉरी रोटेट करते, तो आता हेमिस्फीयर, लेकिन हम कंप्लीट सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, एक्स एक्सिस के नीचे भी है, तो इसलिए वो ऐसे 180 डिग्री में, तो फाई जो एंगल है वो 180 डिग्री में चेंज होगा। तो 0 to 180 डिग्री, दैट इज फाई। ठीक है, अब किसी भी वेव फंक्शन को जब आप ट्रिपल इंटीग्रेट करते हैं, so the first integration is with respect to dr, then d theta, not phi, and then d phi। जब
नॉर्मली ऐसे लिखते हैं कि ये डी फाई की लिमिट यहाँ पे लिखते हैं 0 to पाई, 0 to 2 पाई एंड 0 to r, ठीक है। और ये साई फंक्शन जो है आपका, जो वेव फंक्शन आया है, उसको आप अगर इंटीग्रेट करते हैं देन व्हाट एवर यू गेट स्फेरिकल शेप जो है या अलग अलग टाइप के शेप। अब ये अगर आपका एस ऑर्बिटल है तो आपको स्फेरिकल शेप मिलेगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वैसे। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल है तो आपको शेप ऐसे नहीं मिलेगा, आपको शेप मिलेगा सपोज दिस इज एक्स वाई एंड जी एंड देन यू गेट दिस शेप लाइक दिस। नाउ दिस इज थ्री डायमेंशनल शेप, रिमेंबर, थ्री डायमेंशनल है। और यू टेक आर थीटा फाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। अलग अलग वैल्यू के लिए साई की अलग वैल्यू है तो ये शेप आएगा आपका स्फीयर आ सकता है अगर ये एस ऑर्बिटल है। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आ गया, ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए अगर इसको सॉल्व करते हैं देन यू गेट द स्फीयर शेप जो आपने केमिस्ट्री में देखा है, ठीक है। Yes, लेट sir. मी शेयर विथ यू ऑर्बिटल शेप्स, इंटरनेट पे हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुड, yeah. So let me share this one, this electron orbital. Okay, can you see this? Yes, sir. Okay, so this is Yes. kind of a video. I don't know what exactly they are trying to tell you. The upper one, the first one, जो रेड में दिखाया ना, this is a s orbital. Yes, sir. Now the second row is p orbitals. तो ये जो शेप आपको दिख रहे हैं ना, ये आर्बिट्रली किसी ने ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं है। When you solve this Schrodinger equation for say 2p, तो n की वैल्यू आपने 2 रखी, l की वैल्यू आपने 0 रखी, सॉरी नॉट 0 1, ठीक है, n l m और s कुछ याद आया? n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको ये ऑर्बिटल्स मिलते हैं और फिर इसको श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये आउटपुट मिलता है मैथमेटिकली। Probably we are trying to tell something. The Earth and other planets revolve around the Sun. In the same way, we can compare the Sun to the nucleus of an atom. F. Okay, they are saying to view this lesson you have to pay some amount. We don't have that money. Okay, so that is how you see these orbitals. So these shapes are not the arbitrary shapes. What I am trying to tell you, they are not the arbitrary shapes. कि बस ऐसे हवा में बना दिया कुछ और हो गया, नहीं, mathematically you have solved it, and that's why mathematics is so important, so important. Sir, then what is the equation to solve this orbitals? वही है आपका, ये जो है ना, ये इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको शेयर किया ना, एच साई इक्वल टू ई साई, दैट्स इट। अब साई की वैल्यू आप क्या क्या लेते हैं, फिर साई इज द फंक्शन ऑफ से एक्स वाई जेड, तो आप वो तीनों एक्सिस में उसको सेपरेट आउट करना पड़ता है। जैसे हमने लास्ट टाइम
टाइम अलग और स्पेस अलग डिफाइन किया था, उस टाइप से हमें, एक मिनट इसको शेयर कर देता हूँ मैं पहले। तो ये आपको अलग अलग ये करना पड़ता है। So for example, psi is the function of the x, y, z and t. Then we convert this, normally that is the procedure, that we convert this into r, theta, phi and t. Why we are doing all these things? Because it is very easy mathematically to solve in r theta phi. और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे फिर से एक्स वाई जेड में। जब आपका सॉल्यूशन आएगा ना तो एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं। डेसिमल तो बहुत आसान है हमारे लिए। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट 354 मल्टीप्लाई बाय 179, ठीक है। तो ये आपको अगर कंप्यूटर से फाइंड आउट करना है तो व्हाट इट विल डू, इट विल कन्वर्ट टू बाइनरी। दिस इज बाइनरी, ओके, and then it will multiply. The answer will be binary, and then it will come back to the decimal. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Similarly, what we do is we convert it to say r theta phi. Okay? इसी टाइप से हम r theta phi में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक एक करके now psi of r theta phi and t will be written as say m of r, n of theta and m n o p, p of phi and f of t. Q. ये मैंने आसान तरीके से आपको बताया। ये नॉर्मली इसमें बहुत सारे ग्रीक लेटर्स यूज किए जाते हैं, तो हो सकता है कि आप इस टाइप से वो f की जगह आप ये ऐसा कोई सिंबल दिखे आपको। This is what it is called as psi. Psi, eta, alpha, delta, gamma, बहुत सारे यूज करते हैं। अब ये सेपरेट वेरिएबल हो गए, उसके बाद हर एक का अलग अलग वेव फंक्शन, मतलब वेव फंक्शन को इसको ये जो हमारा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m del 2 बाय del s स्क्वायर प्लस del 2 बाय del y स्क्वायर प्लस del 2 बाय del z स्क्वायर प्लस v। इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर से r थीटा फाई में, ठीक है। और फिर ये सॉल्व करेंगे, मतलब ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सर ये फाई की वैल्यू है क्या, मतलब फाई ऑफ v थीटा फाई t इसकी वैल्यू है क्या? नहीं, ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस है। p ऑफ फाई इज फंक्शन, n ऑफ थीटा, so it is the function of theta, m is the no sir, yeah, minus h square upon time twice m del square by del x square plus this last equation. हाँ तो ये मतलब वैल्यूज है कि हम डिफरेंशिएट किया है इसको? नहीं वैल्यूज नहीं है, दिस इज ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। Okay. ये हम जब डेल स्क्वायर लिखते हैं ना, ऑपरेटर का मतलब हो गया कि जैसे आप ये लिखते हैं ना d बाय dx ऑफ f ऑफ x, मींस डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, फंक्शन के डेरिवेटिव ले रहे हैं। फंक्शन की डेरिवेटिव ले रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेकिन पार्शियल होगा। यस सर, आई अंडरस्टूड नाउ। तो इस टाइप से वो आएगा। और दिस बिकम्स लाइक, ऐसे आप कम से कम 7-8 पन्ने फिर ये मैथमेटिक्स होगा पूरा। फिर ये सॉल्व करो, फिर वो सॉल्व करो, फिर ये सब्स्टिट्यूट करो, वो सब्स्टिट्यूट करो, फिर इसका सब्स्टिट्यूशन का, मतलब अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इफ यू सी द MSc physics notes, then you will come to know about this hydrogen atom case that is popularly known as hydrogen atom. So we normally try to find out the this wave function of hydrogen atom. ठीक है, तो 8-10 पन्ने के बाद फिर आपको ये मिलता है कि psi of r, theta, phi and t is equal to something like some function. For example, r square plus say theta
रेस टू 1/3 और समथिंग समथिंग, बहुत सारा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से कुछ फंक्शन मिलेगा, फिर इस फंक्शन को आप प्लॉट करोगे, प्लॉट इट, या फिर इसको कन्वर्ट करो XYZ में एंड देन प्लॉट इट। तो ये प्लॉट निकालने के बाद जो मैंने अभी आज दिखाया ना आपको, स्पेरिकल, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, जब आप डी ऑर्बिटल की बात करते हो डबल डम्बल शेप आता है, तो दो दो एक्सिस में डम्बल शेप रहता है, एक्स वाई Yes, जेड yes. जेड एक्स, और फिर x² - y², तो उसमें ये क्या बोलते हैं उसको, डोनट टाइप शेप रहेगा, एक डम्बल रहेगा और एक डोनट रहेगा। तो Yes, वो sir. वो सब आप मतलब मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। इट इज नॉट समथिंग इमेजिनेशन। Okay. Now I don't know where you are using this say nanomaterials in civil engineering, but I am sure that it will come sooner or later. Means it has application. हाँ, for example, right now we are using the steel bars, ठीक है, सरिया जिसे बोलते हैं हिंदी में, सळा का जे आपण वापरतो ना याच्यासाठी, Sir, yes. काय म्हणतात त्याला तुम्ही, कॉलम, बिल्डिंग बांधायची असेल तर पहिले कॉलम उभे करतात ना, असे असं स्ट्रक्चर असतं ते. Base and हा, बेस, आय डोंट नो व्हॉट टेक्निकल नेम वी हॅव, हे असे असे बांधलेले असतात, पिंजरे तयार करतात असे, बरोबर. sir, I know. Either square or you go for the circular, depends. Now if you can replace this steel bar, steel is very heavy, it is strong but it is heavy. तो अगर आपको ये जैसे जैसे आप बिल्डिंग बढ़ाते गए, सपोज यू हैव गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर से 108 फ्लोर्स बिल्डिंग, तो ऊपर ऊपर जब आप जाते हैं तो ये वेट बढ़ता जाएगा, वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपको ये बेसमेंट जो है इसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। व्हाट दिस इज कॉल्ड, आई डोंट नो, ये जमीन के नीचे जो होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग चाहिए, नहीं तो पता चला आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और बिल्डिंग नीचे खिसकती जा रही है। नाउ इफ यू गेट समथिंग व्हिच इज स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, स्टील का स्ट्रेंथ जितना है, सपोज वाई उसका यंग मॉडुलस, उतना ही यंग मॉडुलस वाला दूसरा मटेरियल है, लेकिन इसका वेट सपोज 10 टाइम्स लेस है, सिर्फ 10% ही, आप कौन सा यूज करोगे? यंग मॉडुलस, मतलब जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ, यंग मॉडल्स तो सेम है सपोज, लेकिन दूसरा एक मटेरियल है जिसका वेट बहुत कम है, हल्का है एकदम, लाइटर इन वेट वाला। वेट कम है वो वाला, लाइटर वेट वाला। वेट वाला, तो आपकी बिल्डिंग जो है वो लाइट वेट हो जाएगी। तो ये नीचे जो आपको, हाँ, इसको फाउंडेशन बोलते हैं, तो फाउंडेशन के लिए आपको जितना खर्चा आता है वो कम हो जाएगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगी। So that is how you are trying to understand the nanomaterials in that context. Sir, nanomaterials can be also used in insulation or fire resistance. Yes, yes, they are used at various purposes. They are used, और मेरे ख्याल से एक अभी मरीन इंजीनियरिंग में, मरीन क्या बोलते हैं उसको, मरीन कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन जो है उसमें तो सीमेंट वाला आप नॉर्मल वाला अगर सीमेंट डाल देते हो तो बह जाएगा ना, समुद्र में आपको बनाना है। तो देयर इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बट दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन एक्सप्लोर विद दिस नैनो मटेरियल। या ब्रिक्स है, आपकी ब्रिक्स आजकल बहुत हेवी आ रही है, ठीक है, सीमेंट ब्रिक्स है, बहुत हेवी है। पार्टीशन वॉल जो होते हैं उसके लिए हेवी ब्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके 2 बेडरूम के बीच में अगर वॉल है तो उसके लिए इतनी हेवी इसकी जरूरत नहीं है। नाउअडेज यू आर यूजिंग द पोरस ब्रिज। पोरस ब्रिज देखा है आपने,
Ash bricks. एश ब्रिक्स, वो पोरस होती है, वो पानी पे तैरती है। आप में से कितने लोगों ने देखी है? रेज योर हैंड। ओके, गुड। साक्षी, निनाद, आदित्य हैज आल्सो सीन, क्वाइट गुड। गोकुल आल्सो, क्वाइट गुड। आप देखो, अगर नहीं, आपको पता नहीं है ना क्या होता है, तो आप आ जाओ कभी कॉलेज में और ये सिविल डिपार्टमेंट में चले जाओ। उनको बोलना, सर आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू सी द दिस पोरस मटेरियल से बनी हुई वो ब्रिक देखनी, बड़ी होती है साइज में। तो दैट काइंड ऑफ, और फायर प्रूफ ब्रिक्स और ये प्लास्टिक ब्रिक्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर। तो मैथमेटिकली आप पहले ये फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। So that is quite difficult, but you can do it. So nanoparticles can also be used for the self-healing purposes. Self-healing materials. Self-healing materials, yes. I have heard about it, but I don't know exactly what it is. So maybe you can ask to ये बेसिक सिविल कौन ले रहा है अभी? RK sir. हाँ, तो उनसे आप पूछ लीजिए। He can be the proper person to answer. I know that there are some materials called as self-healing materials, but I don't know what exactly it is. सर Yeah. सर हाँ, 11th में हमें सर ने एक बात बताई थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो वो सही है कि गलत है? क्या समझ में नहीं आती? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, हाँ हाँ, ये सही है कि नहीं, गलत है? वो वैसा नहीं है, आपका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत हो गया। वो ऐसा है कि आइंस्टाइन हैज गिवन द some part of quantum mechanics. Yes, he has contributed to quantum mechanics. But धीरे धीरे वो थियरी जैसे जैसे बढ़ती गई, बहुत सारे लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। Now the situation came to certain condition that there is a saying, मतलब एक आपको एक जनरल पर्पस में अगर बताया जाए तो आइंस्टाइन सेड गॉड डज नॉट प्ले डाइस। डाइस प्ले करना मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट? समटाइम्स यू मे गेट 1, समटाइम्स यू मे गेट 2 और 3 और 4 और 5 और 6। डाइस के तो 6 पे फेसेस होते हैं ना। तो ये एटम कैसे बिहेव करेगा या इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, इसका हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि नो वी कैन प्रेडिक्ट इट। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताया था कि आप अगर 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो 2 घंटे के बाद कहाँ पे रहेंगे? 80 किलोमीटर पे, राइट? यू कैनॉट डू इट विथ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। एंड आइंस्टाइन वाज स्ट्रांगली रेजिस्टिंग इट। वो कह रहा था कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और ये सिर्फ आइंस्टाइन के बारे में नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे। इवन मैक्स प्लैंक, वी नो E इक्वल टू h न्यू, ठीक है, ये मैक्स प्लैंक ने दिया था। लेकिन जब इसके बाद जो थ्योरी आई तो मैक्स प्लैंक वाज नॉट रेडी टू बिलीव दैट रियली इट वर्क्स, द मैथमेटिकल इक्वेशन वर्क्स। तो उसने कहा कि नो आई जस्ट सेड दिस इज मैथमेटिकल अरेंजमेंट, लेकिन वो रियल हो गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये बहुत, आप अगर इसका मतलब ये पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज सो ब्यूटीफुल कि आप मतलब शॉकिंग लगेगा आपको, अरे ऐसे कैसे हो गया। इवन श्रोडिंगर गेव हिज इक्वेशन एंड देन व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, बाद में जो थ्योरी आई धीरे धीरे, तो परटर्बेशन थ्योरी है और बहुत सारी डिटेल्स में आ गई फिर। तो उस थ्योरी पे वो श्रोडिंगर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था।
इसके श्रोडिंगर के साथ ही क्या नाम था उसका, हैमिल्टन नहीं, I forgot the name of the mathematician. So what he proposed is atom is a mathematical entity. That's it. You cannot imagine the atom like spherical ball and something like this. अब आप बताओ कि सच में आप इसे बिलीव करोगे क्या? मैंने अगर ये बोल दिया कि सपोज दिस इज द एटम, ये जैसे मैंने इक्वेशन लिख दिया जो अभी आपने देखा ना, and this is something a matrix 1 1 2 3 1 4 7 8 minus 3. ये हो गया एटम. Will you believe it? No, sir, it is a matrix. It is a matrix, something like 1 7 and 9. This is an atom. You won't believe it, but that is what actually he was a student of this Heisenberg. Hamilton था शायद. He was pure mathematician. So he said just forget about all these things कि wave function और wave और ये कुछ नहीं है. This is just the mathematics. और उसने वही आंसर लाके दिखाया जो श्रोडिंगर का आंसर, and it was much easier mathematically obviously. So mathematics is very powerful, very powerful. बस आपको उसको यूज करते आना चाहिए. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है क्या? I can say yes and no because it is not proved yet. Werner Heisenberg. हाँ, वर्नर हाइजेनबर्ग नहीं, वो तो पहले ही हो गया. हाइजेनबर्ग के बाद आया था एक. Yes, you are right. Werner Heisenberg. So Heisenberg ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स निकाला. Julian. मैट्रिक्स मैकेनिक्स. Max Born and Jordan. No, I think Heisenberg only. तो ये H वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दिस इज H. ये जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, तो दिस इज H. ये मैट्रिक्स पहला वाला, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, ये हो गया साई. तो H साई इक्वल टू E साई. खत्म. तो मैथमेटिकली यू कैन मॉडल दिस. अब बहुत सारे मॉडल्स है एटम के. वेक्टर मॉडल है, मतलब एटम को एक एज अ वेक्टर कंसिडर किया गया. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो उसका एक वेक्टर हो गया. वैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं. तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच सम डॉक्यूमेंट्रीज. और ये क्या नाम है उसका, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर भी की थी. प्रोफेसर चिम अल खलील. He is a genius person, I must say. Khalili, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना आप. But he has produced some documentaries on quantum mechanics and relativity and so on and so forth. बहुत सारे हैं. तो उसका क्वांटम वाला आप देखो, बहुत ही मस्त बताया उसने, बहुत ही मस्त. And then quantum teleportation, quantum क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीजें. आजकल तो बहुत सारा रिसर्च उस पर हो रहा है. Even my PhD topic was quite close to this quantum communication. What is quantum communication? हाँ, What is quantum communication? क्लासिकल कम्युनिकेशन आपको पता ही है कि जैसे आपको लाइट यहाँ से यहाँ भेजना है, सपोज एक सिग्नल भेजना है, सपोज हाई, ठीक है, तो इस हाई को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, समथिंग लाइक दिस, जो भी होगा. In format of waves. हाँ,
तो ये वेव्स नहीं, ये पल्स रहेंगे। पल्स है यहाँ पे, मतलब ये 1 है, ठीक है। पल्स है 1 1 देन 0, ठीक है, ये स्पेस छोड़ दिया मैंने, फिर 1 फिर 1, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 है, फिर 0 है और फिर 1, ठीक है। ये हो गया आपका क्लासिकल चैनल। क्लासिकल चैनल मतलब इस टाइम पे आपको ये ऑन रखना है लेजर, फिर यहाँ पे भी ऑन रखना है, यहाँ पे ऑफ रखना है। लाइट जो है ना ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता होगा, ठीक है। yes, yes. फिर ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो सिग्नल जो है वो थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसका मतलब ये लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो थ्रू थ्रू सम किलोमीटर्स, सपोज 100 किलोमीटर, यहाँ से हमने सपोज नागपुर भेज दिया, ठीक है, 75 किलोमीटर। फिर यहाँ पे हमें रिसीवर होगा, तो रिसीवर में ये ऐसे इस टाइप से हमें ये सिग्नल मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से। नाउ दिस इज जस्ट इंटेंसिटी, इज जस्ट इंटेंसिटी। हो गया। अब अगर किसी ने बीच में यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज, पॉपुलरली इट इज कॉल्ड एज एलिस एंड दिस इज कॉल्ड एज बॉब। दिस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिस बॉब सिस्टम। और ये बीच में कोई एक इंट्रूडर आता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में हैकर बोलते हैं। अब हैकर ने क्या किया, यहाँ से डेटा आपका चुरा लिया, ठीक है, ये डेटा ले लिया, ये वाला एग्जैक्टली एज इट इज, उसने ये सिग्नल ले लिया, फिर ये सिग्नल ले लिया और फिर इस टाइप से, और यही उसने कॉपी किया और पेस्ट किया और आगे भी भेज दिया। समझ में आ रहा है सिचुएशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने, एलिस ने क्या किया, एक मैसेज लिखा, एक एनवलप में डाला, एनवलप सील कर दिया। बीच में एक हैकर था, हैकर ने क्या किया, वो एनवलप ले लिया, उसको खोला, उसके बाद वो मैसेज पढ़ा, फिर उस मैसेज को रख दिया एज इट इज, जैसे पहले था वैसे ही उसने सील कर दिया और बॉब को दे दिया। अब आपको पता भी नहीं कि हैक हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्लासिकल चैनल। इसलिए ये जो आप सिग्नल भेजते हैं, तो सिग्नल इतने आसान तरीके से नहीं भेजते। आप कोई भी बैंक की साइट ओपन कर लीजिए, उसके नीचे लिखा रहता है SSL 108 बिट, आई थिंक, नहीं 132 बिट, ऐसे कुछ लिखा रहता है, 132 बिट या समथिंग लाइक दैट। So 128 bit. सिक्योर चैनल होता है। तो 128, ओके, 128 बिट। तो 128 बिट में पूरा का पूरा मैसेज नहीं होता, तो उसको कोडिंग किया जाता है, अलग अलग टाइप से कोड किया जाता है। बहुत सारे कोड्स है, अलग अलग, हर एक के अलग अलग है। जैसे आपको च की लैंग्वेज पता होगी, कौन सी? च की लैंग्वेज। अगर ये लिखना है मुझे, मैं कैसे लिखूंगा? दिस इज अ कोडिंग। ये मैंने लास्ट में लिख दिया और आगे च लिख दिया। जिसको पता है कि ये करना है, तो वो डिकोड कर सकता है आसानी से। तो ये बहुत ही सिंपल कोड हो गया, दिस इज वेरी सिंपल। ऐसे बहुत सारे कोड्स है, फिर भी हैकिंग होता है। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, व्हाट वी डू इन क्वांटम मैकेनिक्स, वी ऐड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? ये लाइट जो आ रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पे ही आएगा। जैसे ये लाइट जा रहा है, तो इसका जो प्लेन रहेगा वो इस टाइप से, ये जो ऑसिलेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक ही प्लेन में रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसका फायदा क्या है? अगर ये किसी मटेरियल से आपने भेज दिया, तो इसका एंगल चेंज होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे चेंज होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये पता है, आपने सिर्फ बाहर से देखा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आउटपुट दिख रहा है आपको, आउटपुट से आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनपुट क्या होगा। दैट इज अ बेसिक
कंडीशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ और फिर हम रुकते हैं, ठीक है? आपका दूसरा भी क्लास है ना 3 बजे। जनरल एग्जांपल ये है कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा कि जो हाफ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है और पसीना भी बह रहा है, आप क्या ये करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे? ऑब्जर्वेशन है आपका, ठीक है? आपका प्रेडिक्शन क्या होगा? यस आयुष। एनीवन? मतलब क्या प्रेडिक्ट? आपने सिर्फ एक भाग आदमी रहा को होगा सर वो, हाँ, भाग रहा होगा। यस यस यस, वेरी गुड। वो आपने देखा कि कोई आदमी हाफ रहा है, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है और उसको पसीना आ रहा है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। वर्कआउट। तो वह उसने या तो वर्कआउट किया होगा या भाग रहा होगा, ठीक है? मतलब आपने फाइनल स्टेज देखी और उस पर से अंदाजा लगाया कि इनिशियल स्टेज क्या होगी। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ। लेकिन अगर आपको ये दिखा कि किसी आदमी के जेब में 2 लाख रुपए, अब आप मुझे बताओ कि प्रेडिक्शन क्या होगा? बैंक से लाए होंगे, नहीं तो चोरी करके लाए होंगे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी ना। हो सकता है वो पैसे उसके होंगे या मालिक के होंगे या चोरी के होंगे या उसको मिले होंगे या पेट्रोल पंप Yes, से sir. वो बैंक की तरफ जा रहा होगा। पेट्रोल पंप पे तो बहुत सारे कैश होती है ना। तो वैसे So many क्वांटम possibilities. में आप फाइनल स्टेज देख के इनिशियल नहीं बता सकते। दैट इज द बेसिक थिंग। अब ये सिर्फ उस आदमी को पता है कि वो कैश कहाँ से आई और कहाँ जा रही है। क्लियर? यस सर। अगर मान लो कि आप उस आदमी को नहीं पूछ सकते और पूछने पे भी वो बताता नहीं, he is very loyal to somebody who's a arithmetic, तो आपको वो कैश कहाँ से आई कहाँ जा रही कुछ भी पता नहीं होगा। इवन यू सी द कैश, आपने देख ली कैश लेकिन आपको पता नहीं उसके बारे में। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में आप फाइनल स्टेज तो देख लेते हैं लेकिन आप उससे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इनिशियल क्या होगा और उसका कोडिंग क्या होगा और उसका मीनिंग क्या है। तो वो जो कोड क्वांटम मैकेनिक्स से पोलराइजेशन में डाला जाता है वो थियोरेटिकली वेरी सिक्योर है, इतना सिक्योर कि यू कैनॉट डिकोड इट, यू कैनॉट हैक इट। दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम कम्युनिकेशन। आई डोंट नो कि मैं जो बोल रहा हूँ कितने लोगों को समझ में आया। Sir, is it only theoretical or it is applied somewhere? नो, इट इज अप्लाइड टू सम एक्सटेंट। मेरे ख्याल से 20-30 किलोमीटर तक ये पॉसिबल हुआ है, लेकिन अभी भी वो स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि पोलराइजेशन प्रिजर्व करके आगे तक ले जाना, दैट नीड्स सम काइंड ऑफ टिपिकल फाइबर्स, जो जिनको क्या कहा जाता है पोलराइजेशन प्रिजर्विंग फाइबर्स। तो वो बहुत एक्सपेंसिव है और वो ले डाउन करना बहुत मुश्किल है। तो दे आर ट्राइंग थ्रू एयर। और इसका फायदा क्या है कि जैसे फर्स्ट केस में जनरल लाइफ एग्जांपल में हमने देखा कि कैश तो हमें दिख गई लेकिन कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे हमें समझ में नहीं आया। वैसे ये आपको सिग्नल मिल भी जाए तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। ठीक है, कुछ इस टाइप से अगर ये ऐसे सिग्नल मिल जाए आपको, ठीक है। What is the meaning of this signal? आपको दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आता, राइट? अब उसके पीछे किसने क्या कोडिंग लगाया हमें पता ही नहीं, दिख रहा है हमें। तो इस केस में क्या होगा कि ये अगर हैकर जो है, जो अभी यहाँ पे दिखाया था, इस हैकर ने ये सिग्नल देख भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
So it is the most secure channel. तो मे बी जब आप रिटायरमेंट पे आएंगे तब तक तो शायद बैंक वाले ये यूज कर रहे होंगे क्वांटम चैनल। हालांकि अभी भी बहुत सिक्योर है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारे बैंक्स के सर्वर बहुत सिक्योर है। वी आर यूजिंग लाइनक्स, सो लिनक्स बेस्ड सर्वर्स आर वेरी गुड, बहुत सिक्योर है। बस ये है कि आपको ओटीपी नहीं बताना पड़ता, नहीं तो बट ओटीपी बताएंगे तो फिर तो पैसे तो निकाल ही लेंगे। Yes, sir. Is quantum is energy? Yes, quantum itself is a energy. Quantum means it is small part of energy, packet of energy. ठीक है, तो जैसे इनिशियली हम कहते थे कि जैसे पानी बह रहा है, वैसे एनर्जी बह रही है कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो जैसे ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो ये कहा जाता था कि एनर्जी यहाँ से इधर जा रही है जा रही है कंटिन्यूसली जा रही है विदाउट एनी ब्रेक। व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स सेज, इट इज गोइंग इन सम स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जैसे एक जनरल लाइफ अगर ये कहा जाए कि आपको अगर किसी ने शरबत दिया, ठीक है, तो पूरा ग्लास पूरा आप एक ही घुट में पी जाते हैं क्या? हालांकि इट इज कंटिन्यूस, वाटर इज कंटिन्यूस, राइट, बट यू टेक सिप। उसी टाइप से ये एनर्जी भी आप सिप्स में बहुत छोटे सिप में आप ये कर, ठीक है। हो सकता है आज का लेक्चर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को लगा होगा कि ये क्या चल रहा है। But anyway, I hope you have enjoyed. Yes, sir. Go ahead. सर श्रोडिंगर इक्वेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अगर मान लो कि ये अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो डिराइव का आता है, और हमारी यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी क्रिएटिव नहीं है कुछ उस पर प्रॉब्लम्स दे दे। ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे उस पर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हालांकि आने चाहिए लेकिन नहीं आएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो प्रॉपर्टीज पूछे जाएंगे कि whether the wave function is continuous or discrete. तो wave function is continuous, it cannot be discrete. wave discrete हो सकती है नहीं, particle is discrete, ठीक है। और श्रोडिंगर इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट मतलब इक्वेशन क्या है? तो 4 इक्वेशन दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट वाला आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इक्वेशन लिख, suppose this is the equation, minus h cross square upon 2m and del psi plus v psi equal to e psi। अब ये करेक्ट है कि नहीं है, बताओ जरा। डेल के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। यस, डेल स्क्वायर होना चाहिए, डेल नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा होगा, बाकी तो सब सही है। h स्क्वायर अपॉन 2m दे दिया, या फिर यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। या ये हो सकता है कि ये पूछा जाए कि व्हाट इज V, तो V इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज E, इज क्या है? एनर्जी, टोटल एनर्जी, नॉट एनर्जी, टोटल एनर्जी। Totally. एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, माइनस h क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। सर एनर्जी कैन बी डिस्क्रीट? यस, बट इट इज लाइक जैसे आप क्या बोलते हो उसको, खसखस देखिए आपने? Yes, sir. Yes, sir. हिंदी में क्या कहते हो उसको? इट इज वेरी डेंजरस एक्चुअली। उसका अगर पेड़ लगाया जाए तो वो उससे अफीम बनता है, ठीक है। मुझे हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं।
कितना बारीक होता है वो? ठीक है, आप शुगर का एग्जांपल ले लो, जान लो, शुगर का एग्जांपल ले लो। आप शुगर काउंट करके लाते हैं क्या? सर खसखस पॉपी सीड है क्या? हाँ, पॉपी सीड्स, यस यस। कितना बारीक होता है, ठीक है। अगर आपने आपने दुकान में जाके पूछा कि मुझे 1000 पॉपी सीड्स चाहिए, देगा क्या वो? No, sir. नो सर। वैसे ये क्वांटम एनर्जी इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप एक यूनिट नहीं देख सकते। वही अगर आपने ये कह दिया कि अब भाई 100 ग्राम दे दो, वो तोल के दे देगा, ठीक है। वैसे आपने एनर्जी बोल दिया कि हाँ 1 जूल एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 जूल में कितनी क्वांटम्स होंगे, कितने क्वांटा होंगे, नॉट क्वांटम, क्वांटा होंगे, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक क्वांटा चाहिए, वो नहीं मिलता। जैसे एक पॉपी सीड, वो कितने का होगा, वो नहीं बेच नहीं सकते। शुगर का एक छोटा क्यूब नहीं बेच सकते, 40 रुपए किलो आप ले आओ, तो आप किलो के हिसाब से ले सकते हैं। वैसे एनर्जी आप ले रहे तो जूल में या मिली जूल में, माइक्रो जूल में ले रहे हैं, लेकिन ये क्वांटा जो है वो उससे भी कम है, बहुत ही छोटा, और उस लेवल पे वो डिस्क्रीट है। जैसे आप एरोप्लेन से जाते हैं, तो एरोप्लेन से जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपका घर अलग और आपके पड़ोसी का घर अलग दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। No, sir. No. लेकिन जैसे आप नीचे नीचे आएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट। पैराशूट है सपोज, आप पैराशूट से नीचे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको दिख जाता है, ठीक है। वैसे क्वांटम है, बेसिकली एवरीथिंग इज डिस्क्रीट। आपका घर अलग है, आपके घर में 3 4 5 6 8 10 कमरे हैं, जो भी है वो अलग अलग है, राइट। तो दैट इज द केस विद द क्वांटम ऑल्सो। लेकिन वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम एक क्वांटा यहाँ से वहां भेजना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, बट इट इज डिफिकल्ट। आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो फिर से हम लेते, मैं तब तक कंप्लीट कर लेता हूँ फॉर्मेलिटी, अटेंडेंस।